Introduction. Arun is at school enjoying his mathematics lesson with his teacher Miss Priya. He is halfway through solving a problem when he sees his science teacher Miss Amita enter the class. She asks Priya the strength of her class. 35, replies Miss Priya. Miss Amita performs a quick mental calculation and says, there are 180 students in the other 5 sections of class 3. If this section is included, the total strength of class 3 is 215. Miss Amita is long gone, but Arun is still wondering how she managed to compute so fast. In this lesson, you will learn mental arithmetic to speed up your calculations. Addition. To master mental arithmetic, you must get your basics right. A basic fact about addition is that the sum of two numbers does not change when we split the two numbers into 2 or more. For example, to add 25 and 7, we can break the number 7 into two numerals, 5 and 2. We do so as it is easy to add 25 and 5. 25 plus 5 is equal to 30. Then we are left with two numbers, 30 and 2, to add. The result is 32. Thus, the sum of 25 and 7 can be quickly calculated as 32. Addition of 3-digit numbers. Let us now see how we can simplify the addition of numbers with 3 or more digits. Let us try and add 171, 512 and 405. To simplify the addition, we proceed according to place values. Let us begin with the digits at the hundreds place, that is 1, 5 and 4. We add 100, 500 and 400. The sum is 1000. Now we proceed to add the digits at the tens place, that is 7, 1 and 0. We add 70, 10 and 00 to get 80. Finally, we add the digits at the ones place, that is 1, 2 and 5 to get 8. Now we need to add 1000, 80 and 8 to get the sum of 171, 512 and 405. The result of the addition is 1088. Mental subtraction. We can perform mental subtraction in a manner similar to mental addition. 0 is the easiest number to subtract. So, we will always try to make the second number, that is, the number to be subtracted, end with 0. Let us try to subtract 29 from 67. Since the second number must end with a 0, we subtract 30, not 29, from 67. The subtraction gives us 37. But we subtracted an additional 1. So, we add 1 to the difference. Thus, the result of subtracting 29 from 67 is 38. Let us practice mental subtraction. Subtract 427 from 842. To simplify subtraction, let us convert 427 to 430 and 842 to 840. To subtract 430 from 840. First, subtract 400 from 800 to get 400. Then subtract 30 from 40 to get 10. Therefore, the difference between 840 and 430 is 410. But we subtracted an additional 3 when we subtracted 430 instead of 427. So, we add 3 to the difference. We left out 2 when we subtracted 430 from 840 and not 842. So we add 2 more to the difference. Thus, the result of subtracting 427 from 842 is 415. Mental multiplication. Having learnt mental addition and subtraction, let us proceed to learn mental multiplication. To multiply a number by 10 or its multiples, add the same number of zeros to the result as in the multiplier. To multiply a number by 9, multiply it by 10 first and then subtract the number itself from the result.
For example, to multiply 47 by 9, first multiply 47 by 10 to get 470. Then subtract 47 from 470 to get 423 as the result. To multiply a number by 5, multiply the number first by 10 and then divide the result by 2. For example, to multiply 57 by 5, first multiply 57 by 10 to get 570. Now divide 570 by 2 to get 285 as the result. Addition hill. There is a very interesting pattern in addition called addition hill. We know that 3 plus 4 is 7. What will be 30 plus 40? 30 plus 40 is equal to 70. What will be 300 plus 400? 300 plus 400 is equal to 700. Now you can tell the sum of 3000 and 4000 very easily. 3000 plus 4000 is equal to 7000. As this pattern gives a hill-like structure, we call it the addition hill. Summary. Let us summarize what we have learned. To add numbers with 3 or more digits mentally, add according to the place values of the numbers. To perform mental subtraction, subtract the nearest multiples of 10 and make suitable adjustments in the result. To multiply a number by 10 or its multiples, add the same number of zeros to the result as in the multiplier. To multiply a number by 9, multiply it by 10 first and then subtract the number itself from the result. To multiply a number by 5, multiply the number first by 10 and then divide the result by 2. Addition hills are created by adding multiples of same numbers. परिचय। अरुण स्कूल में अपनी टीचर मिस प्रिया के साथ गणित के अध्यायों का आनंद ले रहा है। वह गणित के एक प्रश्न को आधा ही हल कर पाता है कि विज्ञान की टीचर मिस अमिता को अपनी कक्षा की तरफ आते हुए देखता है। मिस अमिता मिस प्रिया से उनकी कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछती है। मिस प्रिया उन्हें उत्तर देती हैं 35। मिस अमिता शीघ्र मानसिक गणना करती हैं तथा कहती हैं कि कक्षा 3 के अन्य 5 विभागों यानी सेक्शनों में 180 विद्यार्थी हैं। यदि इस विभाग को और मिला लिया जाए तो कक्षा 3 के कुल विद्यार्थियों की संख्या 215 हो जाती है। मिस अमिता जा चुकी हैं, लेकिन अरुण अभी तक आश्चर्यचकित है कि उन्होंने इतनी जल्दी गणना कैसे कर ली। इस अध्याय में आप गणनाओं को तेजी से करने के लिए मानसिक अंकगणित को जानेंगे। आओ सीखें। मानसिक जोड़, घटा तथा गुणनफल को प्रदर्शित करना। जोड़ का टीला बनाना। जोड़ना। मानसिक अंकगणित में महारत हासिल करने के लिए आपको अपने गणितीय आधार को सही करना होगा। जोड़ने के बारे में एक बुनियादी तथ्य ये है कि 2 अंकों को 2 या अधिक में तोड़ देने पर भी 2 अंकों का कुल योग नहीं बदलता। उदाहरण के तौर पर 25 तथा 7 को जोड़ने के लिए हम 7 अंक को 2 अंकों 5 तथा 2 में तोड़ सकते हैं। हम इसे आसान बनाने के लिए 25 तथा 5 को जोड़ते हैं। अब हमारे पास जोड़ने के लिए 2 अंक 30 और 2 बचते हैं। इन्हें जोड़ने पर योग 32 आता है। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ना। चलो अब देखते हैं कि हम 3 या अधिक अंकों वाली संख्याओं को सरलता से कैसे जोड़ सकते हैं। चलो 171, 512 तथा 405 को जोड़ते हैं। जोड़ने को सरल बनाने के लिए
हम स्थान, मानों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। चलो सैकड़े के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 1, 5 तथा 4 से शुरू करते हैं। हम 100, 500 तथा 400 को जोड़ते हैं। इनका योग 1000 है। अब हम दहाई के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 7, 1 तथा 0 को जोड़ते हैं। हम 70, 10 तथा 00 को जोड़ते हैं तथा योग के रूप में 80 प्राप्त करते हैं। अंततः हम इकाई के स्थान पर उपस्थित अंकों अर्थात 1, 2 तथा 5 को जोड़ते हैं, जिससे हमें योग के रूप में 8 प्राप्त होता है। अब हम 171, 512 तथा 405 का कुल योग जानने के लिए 1000, 80 तथा 8 को जोड़ते हैं। जोड़ का परिणाम 1088 है। आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मानसिक घटाना। मानसिक जोड़ की तरह ही हम मानसिक घटाना भी कर सकते हैं। घटाने के लिए 0 सबसे आसान अंक है। इसीलिए हमें हमेशा द्वितीय अंक बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात ऐसे अंक को घटाना चाहिए जिसके अंत में 0 हो। चलो अब 67 में से 29 को घटाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि द्वितीय अंक के अंत में 0 होना चाहिए, हम 67 में से 29 के बजाय 30 को घटाते हैं। घटाने पर हमें 37 प्राप्त होता है, लेकिन हमें अतिरिक्त एक और घटाना होगा। इसलिए हम अंतर करने के लिए एक बढ़ा देते हैं। इस प्रकार 67 में से 29 घटाने पर परिणाम 38 आता है। घटाने के उदाहरण। आओ मानसिक घटाने का अभ्यास करते हैं। 842 में से 427 घटाते हैं। घटाने को सरल बनाने के लिए 427 के स्थान पर 430 तथा 842 के स्थान पर 840 करते हैं। 840 में से 430 घटाने के लिए सबसे पहले 800 में से 400 घटाते हैं, जिससे 400 प्राप्त होता है। फिर 40 में 30 घटाते हैं, जिससे 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार 840 में से 430 घटाने पर 410 प्राप्त होता है। लेकिन जब हमने 427 के स्थान पर 430 घटाया है, अतः हमने अतिरिक्त 3 घटाया है। अतः हम अंतर करने के लिए 3 जोड़ते हैं। 842 के स्थान पर हमने 840 में से 430 घटाया था, अतः हमने 2 छोड़ दिया था। अतः हम अंतर करने के लिए 2 जोड़ते हैं। अतः 842 में 427 घटाने पर परिणाम 415 प्राप्त होता है। आओ खेलें। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। मानसिक गुणनफल। मानसिक जोड़ तथा घटाने को सीखने के बाद चलो आगे अब मानसिक गुणनफल को सीखते हैं। किसी संख्या का 10 या इसके गुणन से गुणा करने पर परिणाम में उतने ही 0 जोड़ देते हैं जितने की गुणा करने वाली संख्या में हैं। किसी संख्या का 9 से गुणा करने पर पहले उसे 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद कुल योग में से
उस संख्या को घटा देते हैं। उदाहरण के लिए 47 का 9 से गुणा करने पर पहले 47 को 10 से गुणा करते हैं, जिससे योग 470 प्राप्त होता है। इसके बाद 470 में से 47 घटा देते हैं, जिससे परिणाम के रूप में 423 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर इससे पहले 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद परिणाम को 2 से भाग देते हैं। उदाहरण के लिए 57 को 5 से गुणा करने पर पहले 57 का 10 से गुणा करते हैं, जिससे परिणाम 570 प्राप्त होता है। अब 570 को 2 से भाग देने पर परिणाम के रूप में 285 प्राप्त होता है। जोड़ का टीला। जोड़ने के लिए एक बहुत रोचक प्रक्रिया है, जिसे जोड़ का टीला कहा जाता है। हम जानते हैं कि 3 जमा 4 7 होता है। 30 जमा 40 क्या होगा? जी हां, 30 जमा 40 70 के बराबर होता है। 300 जमा 400 क्या होगा? 300 जमा 400 700 होगा। अब आप 3000 तथा 4000 का कुल योग बहुत आसानी से बता सकते हैं। 3000 जमा 4000 7000 होगा। अर्थात इस प्रकार हमें एक टीले समान संरचना प्राप्त होती है, जिसे हम जोड़ का टीला कहते हैं। आओ खेलें। उस विकल्प पर क्लिक करें जो कि जोड़ का टीला बनाता है। हमने क्या चर्चा की? 3 या अधिक अंकों वाली संख्याओं को मानसिक जोड़ने के लिए संख्याओं के स्थान मानों के आधार पर उन्हें जोड़ते हैं। मानसिक घटाने के लिए 10 के सबसे पास वाले गुणन को घटाते हैं तथा परिणाम में उपयुक्त समन्वय बनाते हैं। किसी संख्या का 10 या इसके गुणन से गुणा करने पर परिणाम में उतने ही शून्य जोड़ देते हैं जितने की गुणा करने वाली संख्या में होते हैं। किसी संख्या का 9 से गुणा करने पर पहले उसे 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद कुल योग में से उस संख्या को घटा देते हैं। किसी संख्या को 5 से गुणा करने पर इसे पहले 10 से गुणा करते हैं तथा उसके बाद परिणाम को 2 से भाग देते हैं। समान संख्याओं के गुणन को जोड़ने से जोड़ के टीले बनते हैं।